عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں داخل کرنے کا آج آخری دن۔ نظر ثانی شدہ فہرستیں 11 جنوری کو جاری کی جائیں گی۔ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن ریاست کسی کو تشدد کی اجازت نہیں دے سکتی۔ غیر ریاستی عناصر کا مقصد پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے خود کو زندہ رکھنا ہے۔ جو بھی ریٹ چیلنج کرے گا، قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ ٹیکس چوری بڑا چیلنج۔ نگراں حکومت میں ایف بی آر نے اپنا ٹیکس ہدف پورا کیا۔ پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر OIC سمیت تمام عالمی فورمز پر اپنا موقف بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 251 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 64,601 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 207 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 22,185 ہو گئی۔ دیر البلح میں ایک گھر پر حملے میں 15 افراد شہید۔ خان یونس شہر کے مضافاتی علاقوں پر بھی گولہ باری اور فضائی حملوں میں غزہ کی 70% رہائشی عمارتیں تباہ۔ فلسطین کے سینئر رہنما صالح العروری لبنان میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں مارے گئے۔ صالح العروری کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے دہیا میں ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کو اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی، حزب اللہ کا بدلہ لینے کا اعلان۔ حکومت پاکستان کے ویژن بلوچستان 2030 کے تحت کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ڈیمو کی تعمیر، پانی اور فشریز کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری۔ خوشحال بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں حکومتی اور عسکری کاوشوں کا کلیدی کردار۔ وطن سے بے لوث محبت کے باعث آج عسکری قیادت میں بلوچ نوجوانوں کی بڑھتی تعداد اور دلچسپی دشمن عناصر کے منہ پر تماچا ہے۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 699 شہریوں پر مشتمل مزید 75 افغان خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ 2 جنوری 2024 تک پاکستان چھوڑ کر جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,57,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت اور افغان طالبان پاکستان کے خلاف یکساں۔ بھارتی میڈیا افغان طالبان کے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے سرگرم۔ بھارتی خبر رسائی ادارے ورلڈ از ون نیوز اور ANI نے افغان وزیر دفاع ملا یعقوب کے بیان کا حوالہ دے کر پاکستان پر بغیر شواہد کے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ ملا یعقوب کے بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بھارت اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت ہے۔ سال 2023 میں معصوم کشمیریوں پر غاصب بھارتی فوج نے بے انتہا مظالم ڈھائے۔ 21 دسمبر کو راجوری میں ہونے والے حملے میں 4 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارتی فوج نے واقعے کا ذمہ دار 3 نہتے کشمیریوں کو قرار دے کر بہیمانہ تشدد کر کے شہید کر دیا۔ گزشتہ سال حریت پسندوں کی حملوں میں بھارتی فوج کے متعدد افسر اور جوان ہلاک ہوئے۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ قیادت کی پیشہ ورانہ نااہلی کشمیر میں بھارتی فوج کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ سڈنی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا پہلا روز، قومی ٹیم پہلی اننگز میں 313 رنز بنا کر آؤٹ۔ ٹاپ آرڈر فلاپ، ٹیل اینڈرز کی شاندار کارکردگی، مشکل حالات میں ٹیم کو 300 کا ہندسہ عبور کرایا۔ عامر جمال کی کیریئر کی بہترین بیٹنگ، 82 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد رضوان 88، آغا سلمان 53 رنز بنا سکے۔ سیریز میں آسٹریلیا کی 2-0 سے فیصلہ کن برتری۔
सिडनी से हुबार्ट कश्ती रानी मुकाबला, आखिरी कश्ती ने भी इख्तितामी लाइन अबूर कर ली। रेस की सबसे पुरानी कश्ती सेल्फ सिक्स ने अपने एक अनोखे सवार के साथ रेस मुकम्मल की। मलाहों के अमले का सबसे कीमती रुकन औली नामी बिल्ली थी। दूधी पर पहुंचने पर शायकीन की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। और हिस्पानी टेनिस स्टार राफेल नडाल की टेनिस कोर्ट में फतह के साथ वापसी, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के दूसरे मरहले में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम को स्ट्रेट सेट्स में हराकर टेनिस करियर की 1069वीं टूर लेवल मैच फतह समेटी। 22 ग्रैंड स्लैम फातेह राफेल नडाल ऑल टाइम सबसे ज्यादा फतुहात में चौथे नंबर पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं और अब खबरें तफसील के साथ। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर 2023 तक जारी रहा। सूबाई और कौमी असम्बली का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का अहल है या नहीं, इसका दुरुस्त जायजा लिया जाता है और जिन उम्मीदवारों के कागजात कानूनी तकाज़ों के मुताबिक करार पाते हैं वो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाते हैं, जबकि जिनके कागजात पर एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिए जाते हैं तो उनको ये हक दिया जाता है कि वो अपने कागजात नामजदगी पर उठने वाले एतराज़ात को चैलेंज कर सकें। कागजात की स्क्रूटनी के बाद रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त मुकर्रर किया गया था, जिसका आज आखिरी रोज़ है। इस अमल के साथ ही इलेक्शन के इनेकाद का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर 12 जनवरी को हतमी फहरिस्त आवेज़ा करेंगे, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 19 अपीलें दायर हुई हैं। ट्रिब्यूनल ने इन अपीलों को यकजा करते हुए इलेक्शन कमीशन से जुमे को जवाब तलब किया है, जबकि एक दरखास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे बिलाल शेख इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां ट्रिब्यूनल इन अपीलों पर समाअत कर रहा है। इनसे मजीद डिटेल जानते हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इसमें अपीलों की समाअत कर रहे हैं और आज अपीलें दायर किए जाने का आखिरी दिन है और 3 बजे तक का वक्त है। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल कायम किया गया है और एक जो अपील है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इस पर गुज़श्ता रोज़ ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया था इलेक्शन कमीशन को। आज इलेक्शन कमीशन की वकील पेश हुई हैं और उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपना जो फैसला है इस पर महफूज कर लिया है। इसके अलावा टोटल 19 अपीलें दायर की गई हैं रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज समाअत करते हुए इन तमाम जो अपीलें थी इनको यकजा करने का हुक्म जारी किया है और इलेक्शन कमीशन की जो वकील पेश हुई उनको हिदायत की है ट्रिब्यूनल ने कि वो इन तमाम अपीलों के हवाले से रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था उसके हवाले से तमाम दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड जो हैं वो जुमे को अगली समाअत के मौके पर पेश करें, जिसके बाद इस पर जो है ये ट्रिब्यूनल जो अपना फैसला जारी करेगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं लाहौर का, जहां कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़ है।
اب تک کتنی اپیلیں دائر کی گئی ہیں اور کن کن اپیلوں پر سماعت شروع ہوئی ہے، اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے نوید حیات سے۔ نوید بتائیے گا، آپ موجود ہیں وہاں پر، اور کیا انتظامات ہیں اپیلوں کی سماعت کے حوالے سے، اور فیصلے ہوں گے، اعتراضات دائر کیے گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عام انتخابات 2024 میں ہونے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں امیدواروں کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی منظور اور جو مسترد ہوئے تھے ریٹرننگ افسران کے خلاف جو اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ ہے اس کا آج آخری روز ہے۔ مجموعی طور پر 201 جو ہیں اپیلیں اب تک جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں۔ لاہور کی جو مخصوص جو جنرل نشست ہیں ان پر اس وقت لاہور کی جو 3 ججز پر مشتمل الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ ان کیسوں پر سماعت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج جو ہے این 130 سے میاں محمد نواز شریف کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی اس میں جسٹس جو ہیں انہوں نے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کیا ہے اور ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، اور درخواست گزار نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ ان تمام جو معاملات ہیں ان کے منافی پر انہوں نے کاغذات نامزدگی جو منظور کیے ہیں۔ اس حوالے سے آج جو ہے آج آخری روز ہے کہ آج اپیلیں دائر کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 10 جنوری تک جو ہے الیکشن جو اپیلٹ ٹریبیونل ہے وہ ان جو اپیلوں ہیں ان پر فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد 11 جنوری کو جو ہیں وہ جو لسٹیں ہیں وہ علیحدہ کی جائیں گی، جبکہ 12 جنوری کو امیدوار جو ہیں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں گے، جبکہ 13 جنوری کو امیدواروں کو جو ہیں وہ انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ نوید حیات، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری روز ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل میں 60 سے زائد درخواستیں جمع کروائی جا چکی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ہماری نمائندہ نورین آصف ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نورین، بتائیے گا کہ 60 جو درخواستیں ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل میں جمع ہو چکی ہیں، درخواست میں کیا کہا گیا ہے اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی تقریباً جو ہے وہ اس گزشتہ 2 روز کے دوران 60 سے زائد جو ہیں وہ درخواستیں جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، اور اب آج آخری روز ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں رش بھی بہت نظر آ رہا ہے۔ آج صبح سے اب تک 15 سے زائد امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جو ہیں وہ اپیلیں دائر کر چکے ہیں، اور جن میں سے تقریباً 5 سے زائد ایسے امیدوار ہیں جن کے لیے جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے 5 تاریخ کو یعنی 5 جنوری کو الیکشن کمیشن کو سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیوں کیے گئے، جبکہ دیگر جو ہیں وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے کہ سنی تحریک کے رہنما ہیں ثروت اعجاز قادری، انہوں نے PS 108 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو مسترد ہو گئے، اور اس کی ریزن جو ہے وہ یہی اس پہ لکھی گئی ہے کہ جو تجاویز کنندہ ہیں ان کا جو پتہ لکھا گیا اس میں وہ اس حلقے سے نہیں ہے جس حلقے سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروایا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف وجوہات ہیں، کہیں پر جو ہے وہ نام کی جو ہے وہ غلط درج ہیں جس کی وجہ سے وہ کریکشن کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے، اور جو اپیلیں ہیں وہ دائر کی جا رہی ہیں تاکہ وجوہات جو ہیں وہ جانی جا سکیں۔ اور آج جو ہے وہ شاہ محمود قریشی، مرزا اختیار بیگ، حلیم عادل شیخ سمیت کافی امیدواروں نے اپنے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں۔ آج چونکہ آخری روز ہے، اب رش بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اپنی اپیلیں دائر کرنے کے لیے۔ کل سے جو ہے وہ ان تمام جو کارروائی ہے اس پہ جو ہے وہ سماعت شروع ہو جائے گی اور آگے پروسیجر بڑھے گا۔ ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس MQM سے بھی کچھ یہاں پر لوگ آئے ہیں، انہوں نے بھی اپیلیں دائر کی ان کے کاغذات مسترد ہونے پہ۔ اس کے علاوہ مختلف جماعتوں سے بھی ہیں اور 3 سے 4 جو ہیں وہ آزاد امیدوار بھی آئے ہیں۔ جی بہت شکریہ نورین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کا کام ہے کہ آپ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی ایک پیاس پیدا کر دے اور آپ لائف لانگ لرنر بن جائیں۔ لرننگ فار لائف should be our passion. So keep learning, keep rising high, and inshallah you'll always be successful. To the graduating class of 2023, let me offer my heartfelt felicitations. Your journey has been marked by resilience. آپ نے کبھی آل نائٹرز لگائے ہوں گے، محنتیں کی ہوں گی، لیبز اور اپنے کورس ورک کیا ہوگا، ان کو ان ٹائم ٹرن ان کیا ہوگا۔ It has been intellectual curiosity and an unwavering commitment to your education. Today is a day of reflection
recognition, and anticipation of the exciting possibilities that lie ahead, inshallah. Today is a day to show gratitude. Dear students, हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में और आखिरत में कामयाबी के लिए तशक्कुर का जो वसफ़ है उसको कभी आपने नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला का कुरान में वादा है कि जो शुक्र करेगा मैं उसे मज़ीद दूंगा। और फिर ये हमें सिखाया गया है कि आपको सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है और उसके बाद जो भी ज़रिया बने आपकी ज़िंदगी में या किसी भी लिहाज से बेहतरी का, no matter how big or small, if some good comes your way, whoever is a source for that, you must thank him or her. और आज जब शुक्रिया अदा करने का सोचें तो हम अपने वालिदैन से ज़्यादा किसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्होंने अपनी रातों को बेआराम किया, बेसुकून किया, अपने वसाइल हम पे लगाए, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमें उंगली पकड़ के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों पे ले गए और अपने कल को हमारे आज के ऊपर कुर्बान किया, या अपने आज को उन्होंने आपके मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया और अपने फ्यूचर के लिए और अपने हाल के लिए कंप्रोमाइज़ किए। शायद कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ या कुर्बानी ना दी हो। तो थैंक यू पेरेंट्स, वी कैन नेवर थैंक यू इनफ। और जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो तमाम असातिज़ा कराम बचपन से लेके आज तक और यूनिवर्सिटी असातिज़ा जिन्होंने हमें इल्म देने का ज़रिया बने, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू टीचर्स। और फिर हमारे वो तमाम तालीमी इदारे जहाँ से हमने तालीम हासिल की, बिलखसूस इस यूनिवर्सिटी जिसने आपको इक्विप किया नॉलेज के साथ और बहुत से टूल्स के साथ, स्किल्स के साथ। और फिर हम अपने प्यारे वतन को कैसे भूल सकते हैं। ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा और इनाम। बहुत सी आज चीज़ें जो हम इंजॉय कर रहे हैं, जो हमारे पास हैं, जो ज़रिया बनी पाकिस्तान, अपने मुल्क से मोहब्बत, हमारे दीन का भी ये हुक्म है और बहैसियत इंसान और एक पाकिस्तानी वी हैव टू बी प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड वी हैव टू सर्व आवर नेशन। इंशाअल्लाह अपने अंदर नेशनहुड पैदा कीजिए। So as we delve into the mission of the university to convert manpower into mind power, so that's the basic difference, what sets us apart from other species and other दुनिया की जितनी भी मखलूक है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात पैदा किया है और फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़हन अता किया है, एहसासात दिए हैं, सीखने का और आगे बढ़ने का हमारे अंदर जो मौक़े हैं। और यही मुझे खुशी हुई कि यूनिवर्सिटी इसको अपना मिशन समझती है और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा दिमागी ताकत है और उस दिमाग का सही इस्तेमाल करना, तो उसको सही ज़ाविया उसको फराहम करना। हमारे बहुत बड़े दानिश्वर गुज़रे हैं, अशफाक अहमद। अशफाक अहमद ज़ावियों की बात बहुत ताकीद से करते हैं कि आपके किस चीज़ को आप किस ज़ाविये से देखते हैं, आपके रवैये कैसे हैं। एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। अगर गिलास आधा भरा है तो कोई शख्स उसको आधा भरा देखेगा और कोई शख्स उसको आधा खाली देखेगा। सही दोनों हैं, लेकिन आपके मुस्बत रवैये it will take you to places. Your gratitude, it will make you successful. गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वालिदैन ने जिस तरह से कुर्बानियाँ देकर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुश्किल वक्त का सामना किया, उस पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। उम्मीद है आप आगे चलकर डिग्री हासिल करके पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। आज 70 उम्मीदवारों की अपील ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत होगी। मजीद तफसील जानते हैं, कोयटा से हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आम इंतखाबात का जो सिलसिला है वो अपने तीसरे मरले में दाखिल होने के बाद उम्मीदवारों की जानिब से
अपने कागजात नामजद मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से 7 उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई थी, जबकि आज 70 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी समाअत आज होगी। इसी तरह ये समाअत का जो सिलसिला है वो 10 जनवरी तक जारी रहेगी। 11 जनवरी को इन उम्मीदवारों की जो दुरुस्त करार देने वाले होंगे इनकी लिस्टें यहाँ पर आवेजा की जाएंगी। 13 जनवरी को इन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट की जाएंगी। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की मजमूई बात करें, जिनमें कौमी असम्बली की 16 जबकि सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर अब तक 478 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। तो आज 3 जनवरी है, आखिरी दिन है अपने कागजात नामजद मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का। तो उम्मीदवार आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी कागजात नामजदगी पर जो लगे एतराज़ात इनके खिलाफ अपील कर रहे हैं। जी इसरार, बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर करने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ 50 अपीलें दायर की गई हैं। इन अपीलों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने समाअत के लिए मंजूर किया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 4 जनवरी से अपीलों पर समाअत करेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद अपीलों पर समाअत करेंगे। इन अपीलों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला जारी करेगा। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में अपीलेट ट्राइब्यूनल में आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दर्ज करने का आज आखिरी रोज है। अपीलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान बेंच में अब तक 58 से ज़्यादा अपीलें दायर की जा चुकी हैं। मजीद तफसील जानेंगे फरहान मिर्जा से। फरहान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के तीसरे मरले में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। मुल्तान अपीलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब तक 58 से ज़ायद अपीलें जो हैं वो दायर की जा चुकी हैं। ख़ास तौर पर उम्मीदवारान और उनके वकला जो हैं वो मुल्तान हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान के सीनियर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस अली ज़ैयब बाजवा ने 13 अपीलों के ऊपर समाअत के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया और समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेंच में भी तब्दीलियाँ कुछ लाई गई हैं। इनमें लोधरा को बहावलपुर बेंच के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, जबकि भक्कर को मुल्तान बेंच के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। जो अपीलें जो दायर की गई हैं उनमें मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल, मियाँ चन्नू, कोटद्दू, लैया और राजनपुर के उम्मीदवारान शामिल हैं। बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको आगाह करें, जहां आज तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स इस वक्त 250 से ज़्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 64,600 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक बाजार हिस्स में 289 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसमें 166 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 100 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 30 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत किसी को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। जो भी रियासत के रेट को चैलेंज करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। बीगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स चोरी एक बड़ा चैलेंज है। निगरान हुकूमत में FBR ने अपना टैक्स हदफ पूरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू की तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क की आमदन और अखराजात में फ़र्क बहुत बड़ा चैलेंज है। तालीम, सेहत और आवाम को दूसरी सहूलियात की फराहमी के लिए टैक्सेशन का मरबूत निज़ाम नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि अगर निगरान हुकूमत अपना FBR का हदफ पूरा करने में कामयाब हुई तो क्या वजह है कि माजी में हुकूमतें अपना हदफ हासिल ना कर सकी। After many years, we are the one in last quarter we have achieved our tax target. So if it can be done in 3 months, it means that it is practical, it's possible, and if it is not happening, there is something very seriously wrong with our governance structure. वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए सबको एहतजाज का हक है। ताहम अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि गैर रियासती अनासर का मकसद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए खुद को जिंदा रखना है। हुकूमत ने अपनी रिट हर सूरत बरकरार रखनी है। Anyone who is challenging in violent terms through organized crime, politically, ethnically, religiously, is the enemy of the state. No one can give you the license to kill. No one can give you the right to eliminate the other. So the responsibility of the state is, inshallah, we are ensuring that we have a plan. It is not a challenge that they will prevail on the state of Pakistan. Never. वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दोहरे मेयारात नहीं होने चाहिए। कानून और इंसाफ का यकसा इतलाक सबके लिए जरूरी है। इसमें
किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो खुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स कि चाहे उसका इतलाक मुझ पे हो या आप पे हो, फिर वो यकसां हो। रियासत के चंद इदारे, उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि फ़लस्तीन में जुल्म व तशद्दुद से दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान इज़्तिराब में हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर OIC समेत तमाम आलमी फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया और हमारी अस्करी क़यादत ने भी इस मसले पर अमरीका से बात की है। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से होनहार बच्चों का जाना ब्रेन ड्रेन नहीं, वो हमारा असासा है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाक फ़ज़ाइया के एक ऑपरेशनल बेस पर पाक फ़ज़ाइया में जदीद तरीन वेपन सिस्टम और दिफाई असासों की शमूलियत की पुरवकार तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ऑपरेशनल बेस पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने आर्मी चीफ को सलामी पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया में जदीद तरीन लड़ाका तैयारी J-10C की शमूलियत, जदीद तरीन रडार्स और जदीद तरीन बग़ैर पायलट फ़ज़ाई निगरानी के निज़ाम की शमूलियत से पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि तवील फासले तक और फ़ज़ाई निगरानी के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की शमूलियत से पाक फ़ज़ाइया की दिफाई सलाहियतों में बेहद इजाफा हुआ है। एयर चीफ ने मजीद कहा कि पाक फ़ज़ाइया की कुव्वत में इजाफे के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कॉलेज ऑफ एयर डिफेंस, एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सरमायाकारी की खुसूसी सहूलत काउंसिल के ज़रिए इंतज़ाम स्ट्रेटेजिक अहमियत का एक इंतहाई अहम मनसूबा है जो पाकिस्तान की तकनीकी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि J-31 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जंगी तैयारे के हुसूल की भी बुनियाद रख दी गई है। एयर चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा को मजीद यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ज़ाइया पुरअज़्म है। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जदीद तरीन वेपन सिस्टम की शमूलियत पर पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। खुद इन्हिसारी और इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तकनीकी तरक्की और ऑपरेशनल महारत के हुसूल पर पाक फ़ज़ाइया के जज्बे की भरपूर तायद की। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी किस्म की जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तकरीब के आखिर में पाक फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ लड़ाके और तकनीकी तैयारों ने शानदार एयर शो पेश करते हुए हाज़रीन के दिल मोह लिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों में खुदकुश हमलावर भी शामिल हैं। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम शख्सियात पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशत गर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी कब्जे में लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि मुल्क में सियासत पर कोई पाबंदी नहीं, हर एक को सियासत करने का हक हासिल है। बदकिस्मती से कुछ सियासी ग्रोह मुजाहिरीन को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान हुकूमत मुल्क में पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली गुफ्तगू में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन के हामियों की बात नहीं की। वज़ीर आज़म का इशारा उनकी तरफ था जो दहशतगर्द तंजीमों के हिमायती हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कोई भी जदीद रियासत ताकत के इस्तेमाल पर अपनी इजारादारी कायम न रखे तो वह रियासत कायम नहीं रह सकती। बलूचिस्तान के मुजाहिरीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। मुजाहिरीन के साथ किसी ने जोर ज़बरदस्ती नहीं की। सर्दी की वजह से हमें उनकी तकलीफ का अंदाज़ा है। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटी ने मुजाहिरीन के साथ इंतहाई नरम लहजे में मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन ने कहा कि हम अपने मुतालबात की फहरिस्त भिजवा देंगे।
इंतजामिया इन मुजाहिरीन से राब्ते में है, ताहाल उन्होंने अपने मुतालबात की फहरिस्त हमें नहीं भिजवाई। यहाँ आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 95 बरस थी और वो काफ़ी अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा 2:30 बजे H8 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सरताज अजीज़ ने अपने सियासी करियर का आगाज़ वज़ीर ममलिकत खुराक व ज़राअत के तौर पर किया। बाद में वज़ीर ख़जाना और इक़्तिसादी उमूर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 1985 से 1999 तक सेनेट के रुकन रहे। कौमी सलामती और खारजा उमूर के मुशीर भी रहे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बुजुर्ग सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि सरताज अजीज़ इंतहाई ज़ीरक और मंझे हुए सियासतदान थे। मरहूम तहरीक पाकिस्तान के फ़ाल कारकुन थे और कौम का अजीम असासा थे। मरहूम सरताज अजीज़ की पाकिस्तान के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लाहिकीन से ताज़ियत की है। उन्होंने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और वुरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने साबिक वफाकी वज़ीर सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उनकी सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि सरताज अजीज़ मंझे हुए सियासतदान और मुस्बत सोच के मालिक थे। मरहूम इंतहाई नफीस, मिलनसार, मोहब्बत करने वाले शख्स थे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने सरताज अजीज़ के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि सरताज अजीज़ एक सियासी कदावर शख्सियत और मईशत दान थे। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मुल्की माशी मसाइल के हल के लिए सरताज अजीज़ की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम एक मशहूर शख्सियत थे जिन्होंने बेलौस और मिसाली लगन के साथ मुल्क की खिदमत की। सरताज अजीज़ को हमेशा उनकी इल्मी सलाहियतों, दयानतदारी और रहमदिली के लिए याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर जमातों के सियासी कायदीन ने सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि सरताज अजीज़ ने तमाम उम्र मुल्क की खिदमत की। उनकी आला ज़रफ़ी, पेशावराना सलाहियतों और खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़लस्तीन से मुतालिक कुछ खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। नाज़रीन, गज़ा में इसराइल की सफाकियत इंतहा को पहुँच चुकी है। नए साल के दूसरे रोज़ भी रिहायशी इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के कातिलाना हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वस्ती गज़ा के इलाके दीर अल बलाह में एक घर पर हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने मकासी महाजिर कैंप, रिफा के करीबी साहिली इलाके और खान यूनस शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी गोलाबारी और फ़ज़ाई हमले किए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इन हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 207 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मजमूई तौर पर इजरायली जहरियत से अब तक 22,185 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 57,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। शहदा में तकरीबन 9,000 बच्चे और 6,500 ख़वातीन शामिल। गज़ा की पट्टी में 7,000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। गज़ा जंग के पस मंज़र में मकबूजा मगरबी किनारे के हालात भी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। मगरबी किनारे के शहर कलकीलिया में काबिज़ फ़ौज और निहत्ते फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई। गासिब अफवाज ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए ज़ख्मी शख्स को हस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश करने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। सहूनी फ़ौज ने रमला, जिनीन, हेब्रोन और अरीहा समेत दीगर इलाकों पर भी छापे मारकर मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। फ़लस्तीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 319 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज ने शाम और लिबनान के सरहदी इलाकों पर एक बार फिर हमले किए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमलों में 5 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। इन हमलों के जवाब में इसराइली तैयारों ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दमिश्क के नवाही इलाकों पर भी गोलाबारी की है, जिससे इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है। आपको आगाह करेंगे, फ़लस्तीन के सीनियर रहनुमा साहले अल आरूरी लिबनान में इजराइल के ड्रोन हमलों में मारे गए हैं। खबररसा इदारे रॉयटर्स ने तस्दीक कर दी है कि साहले अल आरूरी को बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके दाहिया में ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। लिबनान की सरकारी खबररसा एजेंसी का कहना है कि धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए। हमले के बायस इमारत और एक कार को भी नुकसान पहुँचा। इजरायली हुकाम ने इस वाक़े पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है।
लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने धमाके की मजम्मत करते हुए इसे नया इजरायली जुर्म करार दिया। हिजबुल्लाह ने सालेह अल आरूरी की शहादत का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। और गजा के मजलूम भाइयों के लिए पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई इमदाद मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। इमदादी सामान की तीसरी खेप में 20 टन से ज़्यादा सामान गजा भिजवाया गया। मिस्र में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ओहदेदारों ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के हवाले की है। पाकिस्तान अब तक गजा के लोगों के लिए 200 टन से ज़्यादा इमदादी सामान पहुंचा चुका है। इमदादी सामान में अद्वियात, खाने पीने की अशिया और रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया शामिल हैं। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान फ़लस्तीनियों को मज़ीद इमदाद फराहम करता रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी लाहौर के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुलाकात की है। मुलाकात में लाहौर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने और N 127 में जल्द इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। खबरनामे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से पाकिस्तान पुलिस एकेडमी के 50वें कॉमन के 34 ज़ेर तरबियत ASPs ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पुलिस और इंतजामी अफसरान को शहरियों के लिए मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। 11 माह में 20,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरों और मुलाजमीन को तरक्कियाँ दी। दीगर महकमों में 40,000 से ज़्यादा अफसरों और मुलाजमीन को प्रमोट किया गया, जबकि पंजाब भर में 737 थानों की अपग्रेडेशन की जा रही है। 11 माह में थानों के लिए सरकारी ज़मीन अलॉट करने का मसला हल किया गया। अब हर थाना सरकारी अराजी पर होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस शोहदा के लवाहिकीन के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद ने हाजी कैंप कोयटा का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। हाजी कैंप में न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हाजी कैंप कोयटा में जिन चीज़ों की कमी है वो पूरी की जाएगी। हज पैकेज में 1 लाख रुपए तक की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की तरबियत और खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अनीक अहमद कहते हैं कि आज़मीन की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी गई है। आज़मीन हज को 30 किलोग्राम का एक सूटकेस फराहम किया जाएगा, जिस पर QR कोड दर्ज होगा। तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन खुशहाल बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। आज बदलते और उभरते हुए बलूचिस्तान पर नजर डालें तो पता है कि वाकई बरसों से पसमानदा बलूचिस्तान तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। हुकूमत पाकिस्तान के विजन बलूचिस्तान 2030 के तहत कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमों की तामीर, पानी की किल्लत को दूर करने और फिशरीज के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में हुकूमती और अस्करी काविशों का कलीदी किरदार रहा है। पाकिस्तान आर्मी ह्यूमन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और बरादर मुल्कों के ताउन से सेहत, तालीम और रोजगार मुहैया करने के मंसूबों में भरपूर मुआवनत कर रही है। कोयटा में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक सेंटर, गवादरा हॉस्पिटल, आवरान, योब, खुजदार और पंजगोर में सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात सर फहरिस्त हैं। गवादर पोर्ट भी खित्ते में गेम चेंजर का किरदार अदा कर रहा है, जिससे मकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। तुर्बत में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज का क़याम, डेट प्रोसेसिंग प्लांट से भी मकामी अफराद को रोजगार मुहैया हो रहा है। वतन से बेलौस मोहब्बत के बायस आज अस्करी क़यादत में बलोच नौजवानों की बढ़ती तादाद और दिलचस्पी दुश्मन अनासिर के मुंह पर तमाचा है। बलोच नौजवानों की बर्री, बहरी, फ़ज़ाई, लेविस, पुलिस और इंसदारी दहशतगर्दी शोबों में शमूलियत तरजीही बुनियादों पर जारी है। चंद मुल्क दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की में खलल डालने के दर पे हैं, ताहम अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे उन तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। मुल्क दुश्मन झूठे बयानी को शिकस्त देकर आज बलोचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। बलोच नौजवान पाकिस्तान और सूबे का फख्र हैं। भारत और अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ यकज़बान। भारतीय मीडिया अफगान तालिबान के बयानियों को दुरुस्त साबित करने के लिए सरगर्म हो गया। भारतीय खबर रसाई इदारे वर्ल्ड इज वन न्यूज
और भारतीय हुकूमत की ज़बान बोलने वाली ANI न्यूज़ एजेंसी ने अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद के बयान का हवाला देकर पाकिस्तान पर बगैर शवाहिद के कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। मज़कूरा वाला भारतीय न्यूज़ एजेंसीज़ ने अफगान खबर रसां इदारे तलू न्यूज़ की खबर का हवाला देते हुए कहा कि अफगान तालिबान के अबूरी वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद का बयान शाया किया, जिसमें उनका कहना है कि साल 2023 में अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पर हलाक किया गया। ये बयान दरअसल उस हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को शवाहिद के साथ बताया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने अपने केस को मजबूत करने के लिए अफगान तालिबान को ठोस शवाहिद भी पेश किए, मगर अफगान तालिबान की जानिब से मीडिया का सहारा लेकर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उन्हें सच साबित करने के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है और न ही उन्हें बराह रास्त पाकिस्तान को पेश किया गया है। अफगान वज़ीर दिफा का दावा है कि उनके इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन से दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी में 90% कमी आई। हालांकि गुज़िश्ता एक साल के आदाद शुमार इसकी नफ़ी करते हैं और पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में अफगानियों की कसीर तादाद शामिल है। तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका या इसके इत्तेहादियों की जानिब से छोड़ा गया असलहा स्मगल करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ताहम पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में ये असलहा भी अफगान तालिबान को दिखाया है। भारत अपनी रवायती पॉलिसी को जारी रखते हुए मुल्ला याकूब मुजाहिद के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जो कि भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़ को वाज़ेह तौर पर साबित करता है। यहाँ आपको आगाह करें कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। 2 जनवरी 2024 को जाने वाले 699 अफगान शहरियों में 235 मर्द, 163 खवातीन और 301 बच्चे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 36 गाड़ियों में 75 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,57,261 तक पहुंच चुकी है और वापसी का यह सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बेबको रीजन में एक रोज के दौरान चेकिंग टीम्स ने मजीद 55 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। बिजली चोरों को 28,96,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। रीजन में रनिंग और डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन में 2,19,70,000 रुपए वसूल किए गए हैं। भावलपुर, रहीम यार खां, भावल नगर और खानेवाल में 34,80,000 रुपए वाजिबात की अदम अदायगी पर 7 ट्यूबवेलों की बिजली मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान अब तक मजबूती तौर पर 510 बिजली चोर पकड़े गए हैं। इनमें घरेलू 492, कमर्शियल 12, सनती 5 और एक ज़राई सारिफ शामिल हैं। बिजली चोरों पर 10,49,974 बिजली के यूनिट चार्ज करके उन पर 4,41,74,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि बिजली चोरों पर आयद किए गए जुर्माने की रकम में से 3,61,72,000 वसूल करके रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई है। साल 2023 में भारतीय फौज ने मासूम कश्मीरियों पर बेइंतहा मज़ालिम उठाए। 21 दिसंबर 2023 को राजौरी में होने वाले हमले में 4 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय फौज ने वाक़े की जिम्मेदारी 3 निहत्ते शहरियों पर डाल दी। भारतीय फौज ने मासूम कश्मीरियों पर बहीमाना तशद्दुद करके उनको शहीद कर दिया। इसके बाद इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर नशर हो गई, जिसमें भारतीय फौज के मज़ालिम को देखा जा सकता था। दिसंबर में 3 शहरियों के कत्लेआम पर 3 स्टार ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने अफसर की बरतरफी की वजह उनकी नाकिस कारकर्दगी बताई। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने अपने जवानों की मौत और मासूम कश्मीरियों की हलाकत के जिम्मेदार ठहरे। साल 2023 में हुर्रियत पसंदों के हमलों में भारतीय फौज के मुतादिद अफसर और जवान हलाक हुए, जो कि भारतीय फौज की आला क़यादत की नाअहली का एक और मुंह बोलता सबूत है। भारतीय फौज के लीडरों में महारत और फैसला साजी का फुकदान दिखाई देता है। भारतीय फौज की आला क़यादत की मुसलसल नाकामी उनकी अफवाज के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी हुई है। भारतीय फौज की आला क़यादत की पेशावराना नाअहली कश्मीर में भारतीय फौज के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो रही है। भारतीय फौज अपनी नाअहली के बायस तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक सीनियर न्यूज़ एडिटर ज़ियाउद्दीन भट्ट 88 बरस की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मोहम्मदी मस्जिद चक शहजाद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। ज़ियाउद्दीन भट्ट ने PTV न्यूज़ के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। वो 1996 से PTV से रिटायर हुए।
वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर खानेवाल शहर से तजावज़ात के खात्मे और ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसील खानेवाल से कुलज़म बशीर की इस रिपोर्ट में। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस की खसूसी हदायत पर शहर से तजावज़ात का खात्मा करके ट्रैफिक के आज़ादाना बहाव को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस खानेवाल को टास्क दे दिया गया। शहरियों को इस सिलसिले में आगाही फराहम कर दी गई है कि गलत पार्किंग और तजावज़ात की सूरत में जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती हो कि मुर्तकिब अफराद को भारी जुर्माने किए जाएंगे और लिफ्टर के जरिए उनका सामान और गलत पार्किंग की गाड़ियाँ उठा ली जाएंगी। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में मैंने मुख्तलिफ रोड्स के जो उनकी यूनियंस के सदूर हैं और चैम्बर के जो सदूर हैं उनके बाकी जितने मुआवनीन हैं दीगर अहदेदार उनको मैंने इधर अपने ऑफिस में बुलाया है। ट्रैफिक के फ्लो को मौसर बेहतर करने के लिए उस पर फर्दन उनको इस बारे तफसीलन बात की है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का मकसद ट्रैफिक के आज़ादाना बहाव को यकीनी बनाना है। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से।